Assalamualaikum. This is Muhammad Hassan Shafiq, and today we'll be continuing with homeostasis. This is lecture number 5 of biology grade 12, and we will continue with homeostasis. The topics which we'll cover in this lecture of today is the disorders of the urinary tract, thermoregulation, and how it's managed or its strategies in humans. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the first slide, which is the disorders of the urinary tract. The normal aging process in humans affects kidney functions like every other organ. Once we start getting older, our kidneys are also affected in the same way, and urinary tract infections get much more common. The branch of medicine which deals with the diseases and abnormalities of the urinary tract and deals with their treatment is called urology. Now, talking about urinary tract infection, both males and females get affected, but the condition is 50 times more common in women, right? This is usually due to the shortness of the female urethra, which is 1.5 inches as compared to 8 inches in men. So the bacteria from fecal matter at the anal opening can easily be transferred into the opening of the urethra in females. Almost all parts of the urinary tract are affected except ureters, which are rarely the site of infection. The types of urinary tract infections depending upon the site are number 1, urethritis, which is the infection of the urethra. Cystitis involves infection of the bladder, and if pyelonephritis is the infection of the kidneys. Since infection is caused by bacteria, so we can treat these infections with routine antibiotics. For prevention, one should always ensure to drink a lot of water in order to flush out any bacteria, right? So since these are caused by bacteria, so once you ensure that there is proper rehydration of the body, this water will flush out any fecal contents much sooner, and there are much little chances of these bacteria traveling from the anal opening into the urethra. Personal hygiene is also obviously important too. Now 15.1, the table 15.1 is the routine bacteria which cause the diseases causing urinary tract infections. Escherichia coli is famous for causing UTI, Proteus vulgaris, and Klebsiella pneumoniae. All these are actually notorious for causing these infections, which are urinary tract infections. Neisseria gonorrhea and Treponema pallidum. These cause Neisseria gonorrhea. Talking about Neisseria gonorrhea, it causes the infection of the urethra, and also the disease is called gonorrhea from its official name as well. Syphilis is also a sexual transmitted disease. It can be it's also due to a bacteria called Treponema pallidum. Right. Next topic is the kidney stones. Right. ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकते हैं. तो ये जो बैक्टीरिया के नाम हैं विच आर फेमस फॉर कॉजिंग यूटीआई, ये आपने याद रखनी है. ठीक है. Kidney stones, the condition of having kidney stones in the body or in the kidney specifically is called nephrolithiasis. तो अब हम nephrolithiasis के बारे में पढ़ेंगे. और ये stones जो कि urinary stones है, these are hard, crystalline, and they stick together forming small pebbles within the urinary tract. Since किडनी का जो ट्यूबुलर रीजन है, रीनल मेडुला, वो बहुत ज़्यादा ट्यूबुलर है और वहाँ पे स्टोन्स की एक्यूमुलेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. ये जो स्टोन्स हैं, इनके साइज जो है, दे कैन बी एज स्मॉल एज ग्रेन्स ऑफ सैंड और एज लार्ज एज गोल्फ बॉल्स. ठीक है. ये किडनी के अंदर भी हो सकते हैं, या किडनी से निकल के जो मस्कुलर ट्यूब है, एक्सटेंसिबल ट्यूब है, यूरेटर, वहाँ से ट्रैवल करते हुए यूरेटर और ब्लैडर की जो जंक्शन है, वहाँ पे भी जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं. यूरिनरी स्टोन्स के बारे में अगर आप जानें तो 5 मेजर टाइप्स हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और सिस्टाइन. ये बेसिकली जो है ना, ये 5 क्रिस्टल्स हैं. ये काफ़ी बड़े सॉल्ट्स हैं, बड़े क्रिस्टल्स हैं. तो इनके ऑक्सलेट्स स्पेशली, फॉस्फेट्स भी
These are negatively charged and are quite big actually. So the accumulation of these in the tubular regions of the kidney, the formation of these massive stones in the kidney are actually there are quite a chance. ये आमतौर पर 2 to 3 मिलीमीटर होते हैं. इसका मतलब है ये नेकेड आई से भी आपको इजीली नज़र आ जाते हैं. इनका टेक्सचर स्मूथ और अनइवन दोनों हो सकता है. कभी कभी ब्रांचिंग स्टोन्स भी देखे गए हैं जिनको कहते हैं स्टैग हॉर्न स्टोन. किडनी के बारे में जो अगर किडनी स्टोन्स हैं तो यूरिन की जो टेस्ट है या यूरिन की जो एनालिसिस है वहाँ से भी आपको किडनी के जो स्टोन्स है जो पर्टिकुलर्स हैं उनके बारे में भी कुछ आइडिया होता है. अगर आपका यूरिन एसिडिक है तो कैल्शियम ऑक्सलेट होगा. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का जो सॉल्ट है ऑक्सलेट, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे. अगर यूरिन अल्कलाइन है यानी पीएच उसका ज़्यादा है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट. और अगर यूरिन परसिस्टेंटली थ्रू आउट जो है वो एसिडिक है तो द स्टोन माइट बी ऑफ अ यूरिक एसिड टाइप. राइट, पढ़ सकती है. राइट, किडनी फेलियर जो है ना वो एक ऐसी टर्म है जो कि नाम से ही काफ़ी स्केरी फील होती है, जिसमें आपका किडनी जो है इट हैज़ स्टार्टेड लूजिंग इट्स फंक्शन एंड there may be different causes, but a kidney is obviously a very important part. It receives 20% of your blood after every heartbeat. So obviously if it's declining in function, there's a big reason for us to be concerned. किडनी फेलियर जो है ये क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी. क्रोनिक रीनल फेलियर की जो कॉजेज़ हैं ये आपने याद करने हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. ए जो है दैट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विस एंड द सराउंडिंग टिश्यू. नेफ्राइटिस जिसमें ग्लोमेरुलर वॉल्स जो है वो इन्फ्लेम हो जाती हैं. और हाई ब्लड प्रेशर भी एक वजह हो सकती है और डायबिटीज़ भी. एक्यूट जो है वो जो कि जिसके सिम्टम्स बहुत पहले ही अपेयर होना शुरू हो जाती हैं, उसमें हेमोरेज है. ठीक है, ड्यू टू ट्रॉमा, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन जिसको डाययूरेसिस कहते हैं, और स्वेटिंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर्स. ठीक है, ब्लैडर और यूरिथ्रा फॉर ड्यू टू एनी स्टोन एंड सिवियर नेफ्राइटिस. दीज कैन बी द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर. बॉक्स में साथ लिखा हुआ है कि क्रोनिक किडनी फेलियर अगर आपकी बॉडी में बहुत लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग्ड रहे तो इट विल प्रोग्रेस टू यूरीमिया एंड एंड स्टेज रीनल डिजीज़ विच इज़ फेटल. और इसके लिए जो है ना वो या तो आपको डायलिसिस जिसको आर्टिफिशियल फिल्टरिंग कहते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी. तो द एंड स्टेज रीनल स्टेज इज़ एक्चुअली कॉल्ड यूरीमिया and it marks a so much decrease in kidney function that we are left with no other option besides artificial filtering and a kidney transplant. Now going back to figure 15.1, इसमें आपको बड़ा easily नज़र आ सकता है कि आपकी आर्म से जो artery है that artery is then joined to a ब्लड पम्प जो कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करता है. ये ब्लड जो है ना फिर एक डायलाइजेट मेम्ब्रेन सेलोफेन मेम्ब्रेन जो कि मुख्तलिफ नेटवर्क के ट्यूब्स का वहाँ से होता हुआ अल्टीमेटली उस मेम्ब्रेन से गुज़रते हुए नीचे आता है. और वो जो है वापस फिर जो है ये ब्लड जो है दैट इज़ देन पास फ्रॉम द डायलाइजेट मेम्ब्रेन एंड देन इवेंचुअली जॉइंड बैक इनटू द बॉडी, यूजली इन दिस केस अ वेन, अ बॉडीज़ वेन. ठीक है, अब इस डायलाइजेट मेम्ब्रेन को अगर आप देखें ना तो नीचे से जो है वो डायलाइजेट फ्लूइड भी जो है वो एंटर हो रहा है. ठीक है, ये फ्रेश डायलाइजेट जो है दैट इज़ सिमिलर इन कंपोजिशन टू द टिश्यू और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द ब्लड. ये इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर देने के बाद ये डायलाइजेट मेम्ब्रेन के अंदर आता है ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी के ब्लड के टेम्परेचर के बराबर हो जाए. और इसमें फिर इस डायलाइजेट मेम्ब्रेन के थ्रू ऑपोजिट फ्लो यानी काउंटर करंट के थ्रू जो है ना ये सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब यानी जो डायलाइजेट है दैट स्टार्ट्स गेटिंग रिचन इन वेस्ट एंड दीज वेस्ट आर कमिंग फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, ब्लड में इनकी कंपोजिशन या कंसनट्रेशन चूँकि ज़्यादा है तो वो डिफ्यूजन से डायलाइजेट फ्लूइड में आ जाएगी और ये डायलाइजेट फ्लूइड जो है ना ये फिर
टॉप में से या उस जो डायलिसिस मेम्ब्रेन जो चैम्बर है, जो नेटवर्क है ट्यूब्स का, उसकी टॉप से कलेक्ट होता हुआ इसको एक अलहदा वेसल में हम कलेक्ट करते रहेंगे। ब्लड की ऑस्मोटिक कंडीशंस, टेम्परेचर और उसके प्रेशर को मेंटेन करना है, उसको ब्लड को सारी कंडीशंस को मेंटेन करना है, कांस्टेंट करना है बिफोर एंटरिंग द डायलिसिस मेम्ब्रेन। और इस डायलिसिस मेम्ब्रेन में से बड़ा स्लोली जो है, जितना ऑब्वियसली वो स्लो मूव करेगा उतने ज़्यादा जो है वो अब्जॉर्प्शन के या मूवमेंट के जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। इट इज़ डन रूटीनली। हीमोडायलिसिस की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है। और डायलाइजेट जो है ना वो एक किस्म का आफ्टर बीइंग यूज्ड और आफ्टर एक्यूमुलेटिंग ऑल द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड प्रीटी मच रिजेंबल्स टू ह्यूमन यूरिन। ठीक है, येलोइश से इसमें ह्यू आती है एंड इट प्रीटी मच रिजेंबल्स यूरिन बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन विच आर सम लाइक वाटर तो है ही, इसके अलावा सम आइंस एंड यूरिया इन अप्रिशिएबल और क्वाइट अ लार्ज कंसनट्रेशन। तो ये तो हो गया डायलिसिस। जो दूसरी डायलिसिस है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अ नेचुरल मेम्ब्रेन। इसमें क्या करते हैं, द पेरिटोनियम विच इज़ अ नेचुरल मेम्ब्रेन इज़ यूज्ड विच एनक्लोजेस द एब्डोमिनल कैविटी। फिगर 15.12 में आपको नज़र भी आ सकती है वो कैविटी। इन दिस प्रोसेस 2 कैथेटर्स आर सर्जिकली इंसर्टेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी that serve as the portals through which dialysate enters and leaves the body। तो ये जो कैथेटर्स है ना, ये सर्जिकली इंसर्ट किए जाते हैं बॉडी में, ठीक है। एंड दीज सर्व एज पोर्टल्स जहाँ से डायलाइजेट एंटर और लीव करता है बॉडी के। मैकेनिज्म सेम है। ड्यूरिंग सर्कुलेशन when blood passes through the blood vessels within the peritoneum, the dialysate attracts certain molecules into to cross the membrane and enter the dialysate, ठीक है, before that blood eventually goes back into the other parts of the body। it is specifically filtered here। और पेरिटोनियम को यूज़ करता हुआ जो ही ब्लड जो है इस एब्डोमिनल कैविटी में आता है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ वो विद इन द डायलाइसेट फ्लूइड जो है अपने वेस्ट मॉलिक्यूल्स को थ्रू डिफ्यूजन पास आउट कर देता है। This seems like much more safer. Peritoneal dialysis is one of the preferred dialysis, but it's like more sensitive than hemodialysis and it requires some certain expertise as well. Can be more costly as well। किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ फुली फंक्शनल किडनी। जिस ऐसा कोई पर्सन जिसको क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन हो चुकी है और उसके पास अब कोई उसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि वो सर्जिकली अपनी किडनी को रिमूव करे ड्यू टू अ क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसकी वजह या तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विस या नेफ्राइटिस विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। तो कोई भी रीज़न की वजह से आपकी किडनी जो है वो अल्टीमेटली इट कैन स्टार्ट लूजिंग इट्स फंक्शन एंड वी आर लेफ्ट विद अ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये पाकिस्तान में बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स, रीनोन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट की जो सक्सेस रेशोज़ है वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसमें और ये रूटीनली एक प्रैक्टिस भी होती है, ये अब इतनी अनकॉमन नहीं रही। इट इज़ फ्रीक्वेंटली डन। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है बिफोर लाइक ट्रांसप्लांटिंग द किडनी। डोनर और रिसिपिएंट के कुछ पैरामीटर्स को चेक करना होता है, ठीक है। सबसे पहले उसका ये है कि आपने एबीओ ब्लड कंपैटिबिलिटी देखनी है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है दैट विल ईजली बी ट्रांसफ्यूज्ड इनटू अ रेसिपिएंट, ठीक है। इसके अलावा जो है डोनर किडनीज़ को HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के बेस पे भी सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि ग्राफ्ट सर्वाइवल के चांसेस को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये भी शायद आपके इल्म में हो कि अगर कोई भी ऑप्शन ना हो तो एक किडनी पे भी बंदा सर्वाइव कर सकता है। लाइक इफ अ डोनर इज़ लाइक transplanting quite a large portion of his kidney, he may still be able to survive. When a donor kidney becomes available, it is a relatively simple operation to transplant it into the recipient. The old kidney is left in place. वो किडनी उसी तरह रखी जाती है as they do not cause any harm. The existing kidneys are removed
only if they cause any persistent infection or if there are chances of high blood pressure, otherwise they are kept in the lower abdomen. उस किडनी को नहीं छेड़ा जाता, यानी टेक्निकली एक इंसान में उस वक्त 3 किडनीज आ चुकी होती हैं. Surgeon chooses a site because the new kidney can be attached easily to a larger artery. ये जो femoral artery है which is usually right next to the bladder, वहाँ से उस किडनी को कनेक्ट कर दिया जाता है. As soon as the transplanted kidney is connected to the blood vessels, it will start purifying the blood of waste products and it will start its normal routine functions of ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. ये सारे प्रोसेस जो कि नेफ्रॉन के अक्रॉस होते हैं और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में इन पर बात भी कर चुके हैं. एक बहुत बड़ा नाम जो कि किडनी रिलेटेड डिजीज़ पे काम करता रहा पाकिस्तान में, जिसको किडनी रिलेटेड डिजीज़ की ट्रीटमेंट का पायनियर भी बोला जाता है, ही इज़ डॉक्टर अदीब रिजवी. कराची में इनका वार्ड था सिविल हॉस्पिटल कराची में, वेयर ही ट्रीटेड किडनी पेशेंट्स. दिस 8-bedded वार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 और आज ये एक फुल्ली फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन कॉल्ड सीयूट which is the Sindh Institute of Urology and Transplantation, उसका उस पे ये जो है ना इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है. ही इज़ a recipient of many awards locally and internationally. Treatment and suit is totally free of cost. तो ये जो है ना इसके लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि इतने रिनोन इदारे में किडनी ट्रीटमेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर अदीब रिजवी की सरप्रस्ती में ये जो इदारा चल रहा है ये करता है. सो हैट्स ऑफ टू यू सर एंड गॉड ब्लेस. Right, moving on, problems associated with kidney transplant. The two problems are rejection and toxic effects of cyclosporin. साइक्लोस्पोरिन जो है ना एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, यानी आपकी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देती है इन अ सेंस इसकी एक ख़ास डोसेज कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो टिश्यू रिजेक्शन है उसके चांसेस कम से कम हो सके और बॉडी उस टिश्यू या ऑर्गन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ ना बना सके. These problems are usually simultaneously treated by adding extra doses of steroids. Patients are required to take medicines such as cyclosporin to suppress the immune system. And if at any point a recipient stops taking this medicine, even after 10 to 15 years, rejection के chances जो है वो occur होना शुरू हो जाएंगे. राइट, ये था एक्सक्रीशन. भी हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टैसिस और इसके जो मेजर पैरामीटर्स थे ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन. We are done with the first two and now we'll continue with the third major aspect of maintaining the body temperature within a certain range, and this ability of a cell or body to keep its internal conditions particular temperature constant is called thermoregulation. ठीक है. The body works to balance the amount of heat loss and maintain a suitable temperature. बहुत सारी अडेप्टेशंस है बॉडी की जिससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होने नहीं देता. ठीक है, आज इस चैप्टर में हम उन अडेप्टेशंस को भी पढ़ेंगे और ये भी आप जानते हैं कि वी आर वार्म ब्लडेड, सो वी ऑब्वियसली हैव टू कीप आवर टेम्परेचर विद इन अ सर्टेन रेंज फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म और एनी अदर प्रोसेस व्हिच इज़ हैपनिंग इनसाइड द सेल. अगर आपका टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा होगा तो उससे जो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स अफेक्ट होंगे वो एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स आप जानते हैं हाई टेम्परेचर पे तो वैसे ही डीनेचर हो जाती हैं अबव 42-41 डिग्रीज़, और लो टेम्परेचर पे उनकी एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है जिससे ओवरऑल सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. एनिमल्स को टेम्परेचर के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स. पोइकिलोथर्म्स जो है उनमें नॉन वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं. ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते और इन्हें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है ना ये जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं. होम्योथर्म्स जो हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट रहता है उनमें बर्ड्स और मैमल्स हैं और ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स के थ्रू अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको काफ़ी हद तक एडजस्ट करने के काबिल हो जाते हैं. जो एनिमल्स मेटाबॉलिज्म के दौरान बॉडी हीट खारिज करते हैं उन बेसिस पे हम एनिमल्स को एक्टो और एंडोथर्म्स कह सकते हैं.
एक्टोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लो लेवल पे मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो क्विकली एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि वो एनवायरनमेंट पे मोर और लेस रिलाई करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होगा उसके उस बेसिस पे वो कुछ मैकेनिज़म्स के तहत अपना बॉडी टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। एग्जांपल्स इनमें इनवर्टिब्रेट्स और पहली जो वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं, पहली तीन फिशेस एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनमें जो है ना वो मोस्टली दे आर एक्टोथर्म्स। एंडोथर्म्स जो है ना वो भी बॉडी हीट से तो अपनी मेटाबॉलिज्म से बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म के एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के अंदर रिस्टोर हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो कितनी हद तक उन्होंने उसको मेंटेन करना है। ये जो हीट प्रोडक्शन है ये मसल्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं बाय अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो एग्जांपल्स एंडोथर्म्स की हैं उनमें बर्ड्स और मैमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन ह्यूमंस के हम बेसिकली किस तरह से अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करते हैं। जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर या थर्मोस्टैट है ये हाइपोथैलेमस में है। ये जो है ना ईज़िली डिटेक्ट कर सकता है द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड पासिंग थ्रू इट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ एक्चुअली स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम रेंज, ये हाइपोथैलेमस कोरेक्टिव रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करता है। लो टेम्परेचर में जो है वो शिवरिंग और हाई टेम्परेचर में जैसा कि स्वेटिंग है। When we encounter a particular problem like a warm or cold environment, temperature receptors in the skin inform the hypothalamus. They also stimulate the higher voluntary centers of the brain. It means that we feel changing our clothing or turning the heater up and down. ठीक है, तो हमारे ना सिर्फ थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हाइपोथैलेमस बल्कि कुछ और रीजन्स भी हैं ब्रेन के जो कि हमें ऐसे मैकेनिज़म्स की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा मज़ीद फ़र्क ना पड़ सके। ये जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं ये उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के काम आते हैं। ठीक है, और फर्दर इंटरनली हमारा होम्योस्टैसिस तो वैसे ही सर्टेन मैकेनिज़म्स को एक्टिवेट कर चुका या करने वाला होता है। ये जो बॉडी टेम्परेचर की कंडीशन है अबव 37 दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथर्मिया। और द मेजर टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू हाइपोथर्मिया आर वेज़ोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। स्वेटिंग बेसिकली जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन दे गेट एक्टिवेटेड टू सेक्रीट स्वेट, एंड वंस दैट वाटर इज लॉस्ट इन फ्रॉम द बॉडी दैट इज फर्दर escaped from the surface of the skin through the process of evaporation, and that heat is taken from the body. So obviously that evaporation will provide us with a cooling effect. इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है वेज़ोडाइलेशन, उसमें ये होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं पर्टिकुलर आर्टरीज हैं उनका डायमीटर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो वेसल्स स्किन सरफेस के करीब आ जाती हैं और उस ब्लड के अंदर जो टेम्परेचर है जो हीट है इट फाइंड्स मोर चांसेस इन रेडिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो वो स्किन से कंपैरेटिवली क्योंकि वो स्किन सरफेस के करीब आ गई है वेसल डायलेट होने की वजह से, तो देयर इज़ इफेक्टिव चांस दैट इट माइट गेट radiated that or the radiation or heat might get radiated from the body much more easier. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो कोल्ड के लिए हैं उसमें एक शिवरिंग है जिसमें मसल्स का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है और वो ज़ाहिर हीट प्रोड्यूस करेंगे। वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से वो स्किन सरफेस से दूर होते हुए उस हीट को ज़्यादा इफेक्टिवली कंजर्व करने में कामयाब हो जाती हैं। पाइलो इरेक्शन इज़ द इरेक्शन ऑफ स्किन हेयर। ठीक है, वो एक इस तरह से बालों का बिहेवियर जिसमें वो बाल इस तरह से इरेक्ट हो जाएं, बिल्कुल इरेक्ट तो नहीं लेकिन एक ख़ास एंगल से इरेक्ट हो जाएं जिससे वो जो स्किन के करीब जो एयर है उसको वार्म रखते हुए ये जो वार्म एयर की शीट है ब्लैंकेट है विच इज़ टचिंग द सरफेस ऑफ द स्किन, दिस नाउ एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ एनी कोल्ड एयर विच इज़ इन द सराउंडिंग्स टू टच द स्किन डायरेक्टली।
इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इज़ आल्सो अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कोल्ड, जिसमें कुछ हार्मोन्स की एक्टिवेशन जैसे थायरोक्सिन T3 T4, these increase the metabolic, they say BMR, the basic metabolic rate, which actually produces more heat to maintain the temperature of the body up to that particular range which is around 37 degree. इसको अगर हम किसी डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो फिगर 15 पेज 39 में इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। सेंटर में जो है ना ये वेज है, इसके ऊपर एक बैलेंस है। ये बैलेंस अगर ऊपर या नीचे यानी अगर किसी भी वजह से इम्बैलेंस हो तो हाई टेम्परेचर पे या ज़्यादा टेम्परेचर पे जो इम्बैलेंस होगा उसमें टेम्परेचर जो रिसेप्टर्स हैं वो स्किन के अंदर वो ब्रेन को सिग्नल्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स इम्पल्स को कंडक्ट कराएंगे ब्रेन तक। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा विच केम फ्रॉम द एफरेंट पाथवे एंड विल सेंड सिग्नल्स थ्रू द इफरेंट पाथवे to actually bring about certain responses which will ultimately lead to cooling of the body, like in this case it is the activation of sweat glands, ठीक है। और एक और प्रोसेस जो कि अभी हमने पढ़ा वेजोडाइलेशन भी होता है। लो टेम्परेचर पे भी सेम वही टेम्परेचर रिसेप्टर जो कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं वो भी ब्रेन को सिग्नल्स इस तरह से भेजेंगे कि ब्रेन उन रिस्पॉन्सेज को डिफरेंटली परसीव करता हुआ ऐसे रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करेगा जो कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएं, जिसमें शिवरिंग है, वेजोकंस्ट्रिक्शन है और इंटरनली ऐसे हार्मोन्स की सिक्रीशन भी है ब्लड में जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू द कोल्ड, ठीक है। लाइक वो कोल्ड जो है ना वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि वो जो सराउंडिंग कोल्ड है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कोल्ड होने नहीं देगा। राइट, मूविंग ऑन, एक्सरसाइज एमसीक्यूज करते हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले जो है जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक्सरसाइजेज भी करेंगे। पहला एमसीक्यू है द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल का वो पार्ट है जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वो सारे जो सॉल्यूट्स हैं वो वापस ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। Number 2, the walls of the collecting duct option D are more or less permeable to water depending upon the needs to conserve water. हमने यहाँ पे ADH हार्मोन की सिक्रीशन की इम्पोर्टेंस की भी बात की थी और बेसिकली जो है ना ये आपकी बॉडी की नीड्स को देखते हुए देखता है कि आपने किस तरह का यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करना है। Which of the following will cause a decrease in ADH production? Drinking water, अगर आप बॉडी में अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे, ऑप्शन सी है इसका, अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो यू विल फील रिहाइड्रेटेड एंड देयर विल बी अ लेस नीड फॉर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू सेक्रीट ADH इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, लाइक अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। Point number 4, the function of glomerulus and Bowman's capsule of the nephron is to, option D, filter the blood and capture the filtrate. Number 5, in man glucose is present in blood plasma but not in urine. This is because glucose molecules are option A, actively transported from the proximal convoluted tubule into the blood, ठीक है। तो ब्लड में फ़ौरन वापस जाने की वजह से यूरिन में आपको आमतौर पर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है, अनलेस के you're diabetic or you have some other problems. Question number 6, part number 6. Evidence for glomerular filtration in the kidney could be obtained by comparing the sizes of molecules present in Bowman's capsule with those in the afferent blood vessel, option A. Moving on to question 7. The site and principal mechanism for the passage of glucose into the bloodstream in the human kidney is the proximal convoluted tubule by selective reabsorption, option D. Question number 8. A drug reduces mitochondrial activity. Which chemical will be present in increased amount? अगर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी कम हो रही है तो ग्लूकोज मेटाबलाइज नहीं होगा, ATPs नहीं बनेंगे और आपके जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज की कंसनट्रेशन आपको काफ़ी नज़र आएगी, ऑप्शन बी। The main difference between endo and ectotherms is from where they get most of their body heat, option B. The water content of human blood is regulated by ADH. कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जहाँ पे ये होता है? लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में, ऑप्शन बी है इसका। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये सारे बुक के अंदर मौजूद हैं, इसके आंसर्स, ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह देखना है
ये देख लें क्वेश्चन नंबर 27 और 28 इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें इतने ज़्यादा डिफरेंस और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो आम तौर पर पूरे चैप्टर को ही कवर कर लेते हैं। चैप्टर को ही कवर कर लेते हैं, तो इसको आपने बहुत गौर से पढ़ना है, बहुत गौर से आपने इसके आंसर्स देखने हैं, याद करने हैं। डिफरेंस के लिए मैं फिर कहूँगा कि सेंट्रल लाइन ड्रॉ करके 3 डिफरेंस मिनिमम होने चाहिए। डिस्क्राइब में एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जांपल विल बी गुड इनफ। ठीक है, रोज़ के आप 5-5 10-10 क्वेश्चन याद करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह होपफुली जब ये कॉलेजेस दोबारा से क्लासेस रिज्यूम करेंगे तो आई होप कि ये चैप्टर आपको मेंटली और टेक्निकली हर एतबार से बहुत अच्छी तरह याद होगा। अगर आप इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चंस देखें तो नेफ्रॉन वाला पार्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 33, 34 एंड 35 ये इम्पोर्टेंट है। किडनी स्टोन्स में डायलिसिस की बात कर सकते हैं। 37 ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। थर्मो रेगुलेशन के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी आसान है। क्वेश्चन 31 को भी गौर से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 30 जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पे पूछा जा सकता है। फीडबैक मैकेनिज्म बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो इसका जो विद एग्जांपल्स आपको जो आंसर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बाकी कमिंग डेज़ में हम इंशाल्लाह, ये चैप्टर जो है ये बड़ा लंबा था, इस चैप्टर को में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं कोशिश करूँगा एक दोबारा से एक छोटा सा लेक्चर बना के आप लोगों की जो मेन जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँ। बाकी आप लोग जो है ना वो अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ। और घर बैठ के तो आप लोगों के पास डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत टाइम है, बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइम दें। ये जो है ना काफ़ी एफर्ट इस सेंस में मांगती है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली तभी आपके जो है वो याद रहेगा। बाकी हमारा यूट्यूब का चैनल है, अगर उधर वहाँ पे ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप मेरे नाम के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट to clear all your doubts hopefully inshallah. Allah Hafiz.